Government holds the judiciary in the highest regard and that there was absolutely no intention on the part of the government to disrespect the judiciary. He added that the government will fully comply with the judiciary's decision and that they have decided to recall all copies printed so far with immediate effect. He further assured that the pre-publication review and editorial mechanisms would be strengthened to prevent similar lapses in the future. Let's listen in. हम न्यायपालिका का अत्यंत आदरपूर्ण सम्मान करते हैं। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। हमें कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अवहेलना करना। जो भी न्यायपालिका ने कहा, जो भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, उसको पूर्णतः पालन किया जाएगा। उसके Right, Sambhav, Mr. Pradhan apologizing, saying that this is absolutely a lapse and a wake-up call at that. How could something like this be printed without, excessive reviews and previews by competent authorities? Probably yes. And this is why, because it's likely that this is because of which the top court has not closed the matter and has put the case for further hearing on March 11th. The Supreme Court has hinted that yes, there is a need for a probe, and if there is any kind of conspiracy, then we will dig into it and we will go into the root cause of it as to who all are responsible, whether it's a lapse at the end of the top officials of the NCERT, or somewhere ministry officials were involved in this, as to who exactly were the people involved behind this, who all were behind this should come forward. That is why detailed answers, replies were sought, and probably within a week or so, when affidavits will be filed in the Supreme Court in this regard as to who will be responsible for who was responsible for all this, so things will be more clear, picture will be more clear by then. Right. Well, Advocate Ashwini Upadhyay has reacted to the Supreme Court's show cause notices to the Education Ministry Secretary and NCERT Director Dr. Dinesh Prasad Saklani. He said if NCERT plans to add a new chapter in the Class 8 textbook, it should focus on corruption and its impact, not just on judiciary, saying that even the Supreme Court has called corruption the biggest threat to our democracy. He also added that the chapter should talk about corruption in India rather than only about the judiciary. Listen in. बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर एनसीईआरटी 8वीं की क्लास में कोई चैप्टर ऐड कर रहा है तो उसको करप्शन के ऊपर चैप्टर ऐड करना चाहिए। करप्शन के क्या क्या परिणाम होते हैं इसके ऊपर चैप्टर ऐड करना चाहिए, केवल जुडिशरी के ऊपर नहीं, करप्शन के ऊपर करना चाहिए। करप्शन भारत की एक बड़ी समस्या है, इससे कोई नकार नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कई बार कहा है अपने फैसलों में कि करप्शन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी, कमिश्नर इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी। लेकिन केवल जुडिशरी के बारे में ऐसा कहना, भाई अगर आपको वास्तव में करप्शन के खिलाफ है तो फिर आप सबकी चर्चा करो। करप्शन इज लेजिस्लेचर, विधायिका में करप्शन है, कार्यपालिका में भी करप्शन है, खबर पालिका में भी करप्शन है, तो फिर सारे करप्शन की बात होनी चाहिए। और केवल करप्शन की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि करप्शन खत्म कैसे होगा इसकी भी बात होनी चाहिए। समस्या की चर्चा करने से कोई समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या ठीक होती है उसका समाधान करने से। जैसे बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती दवाई देने से। तो ऐसे अगर आप चैप्टर डाल रहे हैं तो पहली बात तो जुडिशरी, करप्शन इन जुडिशरी डालना चाहिए, करप्शन इन कंट्री डालना चाहिए, करप्शन इन इंडिया डालना चाहिए। दूसरा, करप्शन खत्म कैसे होगा उसके ऊपर ऐसे लिखना चाहिए। All right. Meanwhile, my colleague Sambhav has spoken to BCI Chief Manan Mishra regarding the judgment. Let's listen in. काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ मनन मिश्रा सर हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी के विवाद को लेके आज सुनवाई हुई, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है? नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी और इंटायर बार का वही स्टैंड है कि इस ढंग का पब्लिकेशन बहुत ही आपत्तिजनक है, पूरे इंस्टीट्यूशन पर एक प्रहार है और इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी अन्य लीडर्स ऑफ द बार जो वहां पर खड़े थे उसके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी खड़ा था, और इस मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी सहमत है। जी,
क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात कही गई सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या किसी तरह की कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी है कि वॉलंटरली अपनी मर्जी से एक ऐसा चैप्टर जोड़ देना करप्शन इन जुडिशरी को लेके, और क्लास 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी एक रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसे में एनसीईआरटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और 8th स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाना कितना अप्रोप्रिएट है? नहीं, बहुत ही ये आपत्तिजनक था, बहुत ही दुखद था ये स्टेप एनसीईआरटी का। और बच्चों के सामने इतना गंदे ढंग से जुडिशरी का एक इमेज पसारना ये बहुत ही गलत था। और इसलिए जो कोर्ट ने जो इस पर संज्ञान लिया इसका और एक सीरियस नोट लिया, जांच की बात कही है आज, ये बहुत अक्षरशः सही है। मैं समझता हूँ कि बार और बेंच दोनों इस पे एकदम पूरी तरह सहमत हैं। आज हमारे माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का भी जो स्टैंड था वो भी बार के साथ था, बेंच के साथ था, सभी इस पर एक थे कि इस ढंग का जो भी कुत्सित प्रयास किया गया है कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा, उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ एक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद मनन मिश्रा सर हमसे बात करने के लिए। All right, more breaking